आज मैं आपको एक वीडियो बताऊंगा कि ईसाई बहन ने इस्लाम कबूल किया है। तो आइए दोस्तों पहले ये वीडियो देखते हैं फिर उस पर बात करते हैं। Assalamu alaikum wa rahmatullah, guys. So I just thought I would come and do a quick video about me and where I've come from. Yeah. So I grew up in Manchester. I grew up in a small village where there was no Muslims whatsoever. My mum was Catholic and my dad was atheist. He was also part of the EDL. If you know what that is, then you know that they go on protests to get Muslims out of the country, that they protest to ban the niqab. Yep, so that was what my dad was doing whilst we were growing up. So I grew up with a hatred for Muslims. At around 13, I was taken into care, and from that point, I became atheist. I just could not believe there was a God. I couldn't understand why there was things like cancer or bullying. You know, I just couldn't wrap my head around it. I just thought, if there was a God, why would he do all these bad things? And when I was 18, I eventually went to prison. In there, I found Christianity. I started to try to believe in a God. It didn't last very long. I just couldn't fathom it. It just did not make sense to me. Like, the Trinity, it made no sense to me whatsoever. I feel like in my heart, I knew there was a God, but at the time I was struggling with alcohol. I'd been an alcoholic for 8 years. I was just not in the right place, I think, to go on that journey. So in 2019, I ended up in Birmingham. This is where I had my first ever conversation with a Muslim. I saw a sister in niqab, subhanallah, and I said, "Why are you wearing that?" I said, "That is disgusting." I said, "Why would your husband force you to wear that?" And she said, "Excuse me." She said, "I don't wear this for my husband." She said, "I wear this for God." She said, "I wear this because I believe that no one should see my beauty other than my husband." And my mind was gone. My head fell off. My mind was just blown. I was like, what? I was like, so I've been lied to my whole life, and I'm thinking Islam's this horrible, horrible religion. Anyway, I went on a journey of seeking knowledge. So I met who is now my husband. I asked him to teach me about Islam. He pointed me to a madrasa. I went to the madrasa. I started to learn about Islam. This was before I took my shahada. I was holding off my shahada. I said, I'm just going to keep delaying it because I like alcohol. I want to keep drinking. And then I met a sister and she said to me, why are you waiting? You could literally die tomorrow. You're better off dying as a Muslim. So I took my shahada the next day, subhanallah. I said to my husband, who was not my husband, I said, I'm going to go to Manchester now and I'm going to go and live as a good Muslim. And he said, why? He said, why don't you just stay here and marry me? And I said, okay then. And we got married a week later. And subhanallah, since then, I've just been trying to get better on my deen. And yeah, I'm so proud to say that I'm a Muslim. जी दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने आज की वीडियो देखी है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। बहुत बेहतरीन वीडियो थी दोस्तों। इस जो बहन की वो भी इसका जो वाक़या था वो भी आप लोगों ने सुना है कि किस मुश्किलात ने इसको घेर रखा था। वो आखिर में इसने इस्लाम कबूल किया। इसकी जो माँ थी दोस्तों वो ईसाई थी और इसका जो बाप था वो मुल्हिद था और इसका जो बाप था वो निकाह के भी सख्त खिलाफ था और हिजाब के भी सख्त खिलाफ था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस बहन ने जो मेहनत की है और जद्दोजहद की है अपने आप के लिए, तो आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम ऐसे आया दोस्तों कि इसने जो है इस्लाम में जितने भी लोग थे और उनसे किसी से इसकी मुलाकात हो गई थी। उसने वहाँ पे इसने इस्लाम की तालीमात हासिल की, इस्लाम के बारे में पढ़ा। फिर ये कहीं और चली गई थी। तो दोस्तों फिर इसका कहना है कि जब मैंने इस्लाम वहाँ पे कबूल किया, मैंने इस्लाम की तालीमात हासिल की, तब मैं जो है अपने वतन वापस आ रही थी। तो वहाँ पे जिससे मेरी मुलाकात हुई थी तो वो भी मुसलमान थे। तो उसने कहा कि आप जो है आप अपने मुल्क क्यों जा रही है, आप मेरे साथ शादी कर ले। तब मैंने उसके साथ शादी कर ली और तब मैंने मेरी एक जो खुशगवार ज़िंदगी थी, सिरात मुस्तकीम के रास्ते पर ज़िंदगी थी, वो मेरी शुरू हो गई थी। तो सबसे जो अहम बात है दोस्तों, इस बहन ने हिजाब पहना है और आप लोग देख सकते हैं कि हिजाब में ये बहन कितनी प्यारी लगती है। इसका ये भी कहना है दोस्तों कि औरत की जितनी भी खूबसूरती है वो हिजाब में है। अगर औरतें जितने भी औरतें हैं दोस्तों, अगर वो खूबसूरत लगती है तो वो अपने शोहर के लिए खूबसूरत लगती है। अगर वो अपने आप पर पर्दा करती है तो उस पर्दे में वो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। आज के जनरेशन में अगर हम लोग देखें तो दोस्तों कुछ कॉलेज की लड़कियां होती है या यूनिवर्सिटीज़ की लड़कियां होती है, मैं उनको कोई ब्लेम नहीं करने वाला हूँ, लेकिन उन लोगों ने भी हिजाब पहना होता है। लेकिन भरपूर तरीके से उनको चाहिए कि आप वो ग्लव्स पहने, सॉक्स वगैरह अपने बॉडी को बिल्कुल ऐसे छुपाए कि किसी को नज़र नहीं आए, उसकी कोई भी ऐसा कोई जो हिस्सा है वो किसी को नज़र नहीं आए। तो दोस्तों हमारे पास जो
मगरबी तहजीब की जो लोग हैं वो मुसलमान होते हैं, फिर लोग वो हिजाब करते हैं, वो इस्लाम के रास्ते पर आते हैं, वो मुस्तकीम के रास्ते पर आते हैं, वो जदोजहद करते हैं, अपने आप के लिए कुरान पढ़ते हैं, फिर कुरान पर अमल करते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि वो बहनें जिन लोगों ने कभी इस्लाम नहीं पढ़ा, जिन लोगों ने कभी हिजाब नहीं पहना, तब वो इस्लाम के दायरे में जब एंटर होती है तब वो पर्दा करती है, हिजाब करती है, ग्लव्स पहनती है, तो और अपने आप पर भरपूर पर्दा करती हो, फिर ये भी कहती है कि तो औरत का जो सही पर्दा है वो उसके हिजाब में है, उसके पर्दे में है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो जितने भी लोग हैं दोस्तों, अगर उनको अल्लाह ताला हदायत दे तो वो दुनिया में जिस कोने में भी हो दोस्तों, तो अल्लाह ताला उनको हदायत दे देता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि बेहतरीन वीडियो आपको भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी कीमती आमाज़ ज़रूर शेयर करें। वस्सलाम।